Welcome to Ideal Classes for GSGK. Today we are going to learn Science, Class 9, Chapter 1, States of Matter. What is matter? Anything which occupies space and has some mass is known as matter. In this video we are going to learn classification of matter, physical nature of matter, states of matter, fourth change of state, fifth effect of pressure on gas, sixth interconversion of three states, seven evaporation. Now what is matter? Anything which occupies space and has some mass is known as matter. आपके आसपास जो भी चीज आपको दिख रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, पेंसिल, पेन, रबर, कॉपी, बुक, फैन, कूलर, मिरर, ब्रश, कॉम, जो भी चीज दिख रहा है आपको सब मैटर है, बिकॉज दे ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, दैट्स व्हाई दे आर मैटर. What is the generally we classify matter into physical state and chemical state. Matter is classified into physical state and chemical state. On the basis of physical state, matter is classified into solid, liquid and gas. But in higher classes you are going to learn there is fourth and fifth state. Fourth state is plasma and fifth state is BEC, Bose-Einstein condensation. On the chemical classification, on the basis of chemical classification, matter is classified into pure substance and mixture. On further, pure substance is classified into element and compound, and mixture is classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. What is pure substance? जनरली जब हम दुकान जाते हैं तो बोलते हैं प्योर घी देना, बट एक्चुअली में वो क्या प्योर होता है? अपन लोकल यूज करते हैं प्योर घी देना, बट एक्चुअली में साइंस की लैंग्वेज में प्योर चीज वही होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जो सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलके बना हो, या फिर उसमें जैसे घी हो गया, घी में कार्बन है, फैट है, हाइड्रोजन है, there are more than one element. So in the eye of science it is not pure. Pure substance means it have only one type of substance, like hydrogen. In hydrogen there is no other element. Like oxygen, in oxygen there is no other element other than oxygen. Pure substance is classified into element and compound. What is mixture? When two or more substances combine in any ratio, it is known as mixture. Mixture is further divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And compound is when two or more elements fixed in a same ratio or definite ratio, fixed in a definite ratio, it is known as compound. Physical nature of matter. Now we are going to learn physical nature of matter. Matter is made up of particles. जैसे आपने एक पेंसिल को लिया, आप उसको तोड़ते गए तो आपको लास्ट में एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा. That means matter is made up of particles. And second, the particle of matter are very tiny. The particle of matter are very tiny. Third is the particle of matter have space between them. And fourth, the particle of matter are continuously moving. And fifth, the particle of matter attract each other. ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो ये जानने के लिए कि मैटर के बीच में स्पेस होता है और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं. आप एक बीकर लेना, उसमें वाटर डालना, उसका लेवल नोट डाउन कर लेना. नाउ ऐड सम sugar or salt. After adding sugar and salt, the level of water is not increased. That means sugar and water is made up of small particles, and there is a space between water that occupied by this salt or sugar. Hence it is proved matter is made up of particles and
The particles of matter have space between them. The particle of matter are very tiny. You can see by experimenting this practical, doing this practical. The particle of matter have space between them. When we add salt to water, there is space in water. That's why salt is gone in that space. Particle of a matter are continuously moving. आप एक बीकर में पानी लेना, नो ब्लू इंक को उसमें ड्रॉप कर दो, आप देखोगे धीरे 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 पूरा ग्लास क्या हुआ, ब्लू हो गया. बिकॉज द पार्टिकल ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड द होल वाटर गेट्स ब्लू इन कलर. पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. State of matter. There generally we study there are three state of matter: solid, liquid, gas. solid में जो particles होते हैं like this, ये एकदम पास होते हैं, इसी कारण it is hard in nature. These have a fixed shape and fixed volume because these particles are closely packed to each other. The space between this particle is minimum. See that the space between this particle is minimum. And the forces, since the space between the particle is minimum, the forces between the particles is maximum. And movement, there is no movement in this particle, or we can say the movement of particle is minimum. And we cannot compress solid easily. That means they are least compressible. And rate of diffusion is also least. Properties of liquid. Liquid have no definite shape but have fixed volume. See this, it does not have definite shape. Liquid, the shape of liquid is in which vessel you are going to fill it. It take the shape of that container, but it have fixed volume. Here it is, volume is fixed. Here the volume of bottle is fixed. The space between the particle is intermediate. Means solid से कम होता है. जो solid में क्या था, स्पेस एकदम कम था, इसमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. इसका जो पार्टिकल्स इसमें और इसमें क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और गैस में सबसे ज़्यादा रहता है. The forces of attraction between the particle is intermediate. उसमें क्या था, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में एकदम ज़्यादा था, इसमें सॉलिड से कम होगा. दैट्स वाई इट इज इंटरमीडिएट. द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ऑल्सो इंटरमीडिएट. दे आर लेस कंप्रेसिबल. सॉलिड इज लीस्ट, इट इज लेस, एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड. सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन होता है. प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस. गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप or fixed volume. Gas occupy the whole shape of container. The space between the particle is maximum. See, the space between the particle is maximum. You can see that. Since the space between the particles is minimum, the space between the particles is maximum. That's why the force of attraction between the particles is minimum. And movement of the particles is maximum. Since it have space, that means it can move. They are most compressible because the particles have space, and their rate of diffusion is highest in solid. See, this is solid. The space between the particles is less, and this is liquid. Compared to solid, there is more space. And gas, here in the gas it is the most space compared to liquid and solid. See solid, when we give heat to the solid, जब solid में heat देते हम तो इसके जो particles हैं ये थोड़े दूर दूर हो जाते हैं. That means it becomes liquid. और जब लिक्विड में और हीट देते हैं तो इसके पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं, मतलब ये गैस बन जाते हैं. जब इसी कारण जब सॉलिड को हीट देने से क्या हो जाता है, वो लिक्विड, और लिक्विड को हीट देने से वो गैस बन जाता है. एक बर्फ़ को जब हम हाथ में रखते हैं तो क्या हो जाता है,
उसका जो टेम्परेचर फ्रिज में था उससे हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, मतलब उसको हीट मिल रहा है। तो इस सॉलिड से क्या हो जाता है, लिक्विड। फिर लिक्विड थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, मतलब उसको और टेम्परेचर मिला तो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। चेंज ऑफ स्टेट, अभी हमने देखा कि सॉलिड को अगर हीट देंगे तो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड को हीट दिए तो गैस हो गया। सिमिलरली जब गैस से हीट वो ले लिए तो लिक्विड स्टेट में आ गया, और लिक्विड से हीट ले लिए मतलब कि उसको ठंडा कर दिए तो सॉलिड आ गया। हमने देखा कि सॉलिड को हीट देने से लिक्विड हुआ, लेकिन लिक्विड से हीट लेने से वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। ये देखो ये सॉलिड है, जब इसको हीट दिए तो क्या हो गया, लिक्विड। अब लिक्विड को हीट देंगे तो इवापोरेट हो जाता है। द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, सॉलिड में क्या थे, पार्टिकल्स क्लोज थे, एंड कैनॉट मूव, बट व्हेन वी अप्लाइड हीट देयर पार्टिकल्स move faster and move further like this, then that's why it becomes liquid. In gas the particles are far apart and move very quickly and randomly, you can see it. Melting, जब किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो एक टेम्परेचर के बाद वो मेल्ट हो जाता है, जिस टेम्परेचर में वो मेल्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट, जब सॉलिड को हीट देते हैं उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। उस वाइब्रेशन के कारण उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट होने लगता है थोड़ा थोड़ा। देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। The temperature at which a solid melt is called melting point. The melting point of ice is 0 degree Celsius or 273 Kelvin. Latent heat of fusion. Latent means छुपा हुआ, means 1 kg आपके पास सॉलिड है, उसको आप कितना हीट दोगे कि वो लिक्विड हो जाए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called the latent heat of fusion. Boiling, when a liquid is heated its particles begin to move even faster, then at particular temperature the liquid begins to boil and change into gas. Boiling is a bulk phenomena. Bulk means when the surface area is more, it boils at a rapid rate. When a liquid boils, the bulk of the liquid changes into vapor. The temperature at which liquid start boiling is called boiling point. The boiling point of water is 100 degrees Celsius or 373 Kelvin. To change Celsius into Kelvin, we add 273.15 Kelvin. Latent heat of vaporization. Suppose you have 1 kg liquid and when you applied heat to it, at a certain temperature it will becomes into vapor. At that heat that it is needed, it is known as latent heat. The amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure is called the latent heat of vaporization. See, this is liquid. See this solid and liquid. When solid cold, the position of particles. When solid hot, it's get more space. जब सॉलिड ऐसे इसके पार्टिकल देखो पास पास हैं, जब इसको हीट दिए तो इसके पार्टिकल दूर दूर हो गए। सिमिलरली लिक्विड, ये अभी कोल्ड है, जब इसको पार्टिकल्स को हीट मिला तो ये देखो ये दूर दूर हो गए। सब्लिमेशन, आपने कपूर को जलाया होगा, कपूर को जलाते हैं तो सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है, लेकिन जलाने के बाद वो गायब हो जाता है, मतलब वो गैस में स्टेट में चल गया। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चल जाते हैं, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल सॉलिड कैम्फर और एमोनियम क्लोराइड, व्हेन दे आर हीटेड they change their state from solid to gas. Effect of pressure on gas,
हमने देखा जब सॉलिड को हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो लिक्विड हो जाता था, लिक्विड को जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो गैस हो रहा था। अब प्रेशर, आपने देखा होगा हम आप लोगों के घरों में एलपीजी यूज होता है। एलपीजी लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहता है, वो गैस के फॉर्म में रहता है। वो गैस के फॉर्म में कैसे हुआ? उसमें प्रेशर अप्लाइड किया गया है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज लिक्विफाइड। द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी वाज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। We can liquefy gas by applying pressure and reducing the temperature. Solid carbon dioxide is called dry ice and formula is what? CO2. If the pressure is reduced, it change directly to gas without coming into liquid state. वो liquid state में आता भी नहीं और गैस में आ जाता है. So solid carbon dioxide is known as dry ice. Interconversion. सॉलिड को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कभी कभी सॉलिड डायरेक्ट गैस में भी हो जाता है। तो सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिड को फ्यूजन। और लिक्विड को जब गैस में करते हैं तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन। और सॉलिड जब डायरेक्ट गैस में होता है तो उसको सब्लिमेशन। अब लिक्विड से जब सॉलिड होता है तो सॉलिडिफिकेशन होता है, और जब गैस से लिक्विड होता है तो कंडेंसेशन होता है। आपने देखा होगा जब वाटर साइकिल के प्रोसेस को, जब जमीन पे वाटर, गर्मी के दिनों में जहां भी वाटर रहता है इवापोरेट हो जाता है। जहां भी ज्यादा हीट होता है वहां बारिश ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा हीट के कारण वाटर जहां भी रहता है, वेल से, रिवर से, पॉन्ड से इवापोरेट हो जाता है। वाटर इवापोरेट होकर क्या बना लेता है? वाटर का ड्रॉपलेट। फिर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट क्या बनाते हैं? क्लाउड बनाते हैं। फिर क्लाउड क्या होता है? एक समय के बाद कंडेंसेशन होके वो लिक्विड बन जाते हैं, लिक्विड के फॉर्म में बरसते हैं। द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इज व्हाट? रेन वाटर। दैट डज नॉट मीन्स यू कैन ड्रिंक इट, बिकॉज व्हेन इट कम्स इट गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू एटमोस्फेयर। इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? आप कहीं भी जैसे जमीन में पानी डाल दिए, कुछ समय के बाद क्या होता है? वो पानी नहीं दिखता। क्या हो गया? वो पानी इवापोरेट हो गया। तो दैट मीन्स द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। एंड इवापोरेशन कॉजिंग कूलिंग। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में क्या करते हैं? छत पे पानी डाल देते हैं। छत पे पानी इसलिए डाला जाता है कि छत से वो पानी क्या हो जाए? इवापोरेट हो जाए और छत क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। मटके में देखा होगा आपने कि मटके का पानी क्या होता है? ठंडा होता है। मटका का पानी ठंडा क्यों होता है? मटके में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, उस स्मॉल पोर से वाटर बाहर आ जाते हैं। अब वाटर बाहर आते हैं तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पानी इवापोरेट हो जाता है, तो मटके का पानी ठंडा रहता है। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इवापोरेशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन ज़्यादा होगा। विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवापोरेशन ज़्यादा है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी है तो इवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज ह्यूमिडिटी क्या होता है? जितना वाटर एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। आपने में अभी समर वाला एग्जाम्पल दिया था। पीपल क्या रहते हैं? स्प्रिंकल करते हैं वाटर को ऑन द रूफ, ताकि वो क्या वाटर इवापोरेट हो जाए तो ठंडा लगे। इसीलिए हाउ इवापोरेट कॉजिंग कूलिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स, वी हैव सीन दिस फीचर। रिजिडिटी। व्हाट इज रिजिडिटी? इट इज द प्रोपेंसिटी ऑफ एन सब्सटेंस टू कंटिन्यू रिमेन इन इट्स शेप when treated with an external force। जब एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो अपना शेप में अभी भी है वो, that means it is rigid। फ्लूइडिटी क्या होता है? जैसे पानी को कहीं भी डाल दोगे तो बहने लगता है, that is known as fluidity। काइनेटिक एनर्जी। मोशन allow particle to possess energy which is referred to as kinetic energy। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होता है? गैस में, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। और मैथमेटिकल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू हाफ mv²। डेंसिटी, इट इज द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। जितना ज्यादा सब्सटेंस
उसका सब्सटेंस में, जैसे आपके पास पेंसिल है तो उस पेंसिल को बनने के लिए जितना ज़्यादा वो पेंसिल का मटेरियल लगा है उसका डेंसिटी उतना है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यू कैन चेंज फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस एंड सेल्सियस इनटू केल्विन। अगर के पास देर इज, suppose value is given in Celsius and you want to convert it into Fahrenheit, then you have to use F is equal to C into 9 by 5 plus 32. You can use this formula to change Celsius into Fahrenheit and Fahrenheit Kelvin. Thank you so much for watching this video. If you have any doubt, do comment in comment section and do share and subscribe this video. Thank you so much.